Good morning students, welcome to the class, and this video is for class 12th, and today we discuss about the preparation of haloalkanes. In the last video, we discussed about haloalkanes, their position, their different types like alkyl, aryl, vinyl, and so on, benzyl. Now, today we discuss about preparation of haloalkanes. First, from alcohols. Alcohols are basically ROH, and remember one thing always. R is the alkyl group. And what is alkyl group? Carbon chain with one open valency like this, CH3 bond. ठीक है, सबसे छोटा जो alkyl है that is CH3 and that is methyl. Okay, so first, when ROH react with HCl, it gives RCl plus H2O. ROH plus HCl gives RCl plus H2O. ये क्या है? ये स्केलेटल रिएक्शन है, ऐसा होता है। क्यों होता है वो देखिए, मैकेनिज्म। R bond OH due to large electronegativity value of O as compared to the carbon, because R is what? R is simply carbon atom. The central atom is carbon. The bond shift towards the OH group plus H bond Cl. The bond shift towards the Cl. So this becomes delta positive and this becomes delta negative. Same as this becomes delta positive and this becomes delta negative. Now, R delta positive bond OH delta negative plus H delta positive bond Cl delta negative, then Cl attacks to the R and OH get transferred to the H plus. Cl कहाँ अटैक करेगा? R के ऊपर, और OH किससे मिल जाएगा? H प्लस से। तो क्या बना देगा? RCl प्लस H2O। देखिए, मैंने बहुत बार सुना है कि ऑर्गेनिक को रटना पड़ता है। बिल्कुल रटना नहीं पड़ता। क्यों? अगर आपको ये मैकेनिज्म पता होगी तो आपको ऑर्गेनिक कभी रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड कहाँ टूटेगा, कहाँ जुड़ेगा, कैसे टूटेगा, और सारा जो सिस्टम है वो न्यूट्रल कैसे होगा। तो ये पूरा न्यूट्रल सिस्टम है, ये चार्ज सिस्टम है। ठीक, ये क्या है? रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, or simply you can write CH3CH2OH. When react with HCl, it gives CH3CH2Cl plus water. R की जगह हमने इतना कुछ लगा दिया है, C2H5, ठीक है, और जो हमें मिला है प्लस HCl, जो हमें मिला है वो क्या मिला है? C2H5Cl plus water. Then this is the R. ROH plus HCl gives RX plus H2O. So this is the basic concept. Now, the next will be the next reaction will be ROH plus NaBr in presence of H2SO4. ROH plus NaBr, sodium bromide, in presence of H2SO4 will gives RBr plus NaOH.
The mechanism will be same. R bond OH, the bond will be transferred to OH plus Na bond Br. Then this is negative and this is perfectly positive. So the R delta positive bond OH delta negative plus Na positive plus Br negative. Now Br negative attacks to the R delta positive, and so that the OH group get leave out. Now this is RBr plus NaOH, and the reaction is in presence of H2SO4. So this is the reaction. Now next one is ROH alcohol, ये है C प्लस PCl3 ROH plus PCl3 will give RCl plus H3PO3, and always remember here is 3 ROH and the result is 3 RCl. देखिए रिएक्शन कैसे होगा, पहले एक ROH को लेके बात करते हैं. R बॉन्ड OH, देन R पॉजिटिव एंड OH विल बी नेगेटिव, प्लस PCl3. PCl3 के केस में P का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, PCl3 में P का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 है. सो दिस विल बिकम PCl Cl and Cl. So first of all, the bond will transfer to the Cl, and then R positive OH negative plus Cl negative plus PCl Cl पे एक पॉजिटिव चार्ज, then Cl come to the R and OH goes to the P positive. Then this will form 1 RCl plus OH bond P bond Cl bond Cl. Then a new ROH come to join with this OH P Cl Cl. Then this will be negative and this will be positive. The bond transfer to the next Cl. So this will form R bond Cl plus OH bond P bond Cl bond OH. Now a new ROH, this will be positive and this will be negative, and the bond transfer to the Cl again. This will form again R bond Cl plus OH bond P bond OH bond OH. So for the product we have RCl, RCl and RCl. So all these together gives 3 RCl, and another product is OH OH OHP, that is H3PO3. So this is the reaction. बुक में आपके लिए बस इतना ही लिखा हुआ है. मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा. बस आपको ये याद रखना है कौन सा बॉन्ड कहाँ अटैक करता है, और इतना कुछ लिखने में बिल्कुल भी समय आपको नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसे सारे मैटर को अपने कॉपी में लिख लेंगे, जिससे आपको रिवीजन में इजी रहेगा. और सेम वीडियो आप मेरे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.
Next is when ROH react with PCl5. When ROH react with PCl5, then it form RCl plus HCl plus POCl3. RCl plus HCl plus POCl3. Now, the pathway of reaction is R positive OH negative plus PCl3 breaks up like this. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Now, Cl2 प्लस PCl3 इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इंटरमीडिएट है जो कि रिएक्शन के बीच में कहीं बना होगा। हमने देखा नहीं है लेकिन बना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब क्या है, ये R पॉजिटिव है और ये क्या है, Cl2 है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है। अभी चार्ज नहीं है लेकिन इसके पास फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है। सो that Cl becomes Cl dot and Cl dot. This Cl becomes Cl dot and Cl dot. One of the Cl dot combines with the R positive and form RCl. Then another Cl dot combines with this OH negative. Now OH negative को अगर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहां पर एक Cl है, ठीक, तो क्या हो गया, इस H की जो कैरेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर में है और ये नेगेटिव कैरेक्टर में है, ठीक है। ये इससे कंबाइन करेगा। अब इस केस में ऑक्सीजन जो है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये कहां जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट के पास, P के पास। तो क्या बना दिया, RCl प्लस क्या हो गया, HCl जो यहां से निकला, H और Cl, और O कहां गया, P के पास। क्या बन गया, POCl3। So this is the reaction and this is the pathway of reaction. You have to learn only this reaction, but अगर आप ये पूरा मैकेनिज्म याद रखेंगे, ठीक है, तो कभी भी आपको इसके प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा और ना ही कभी रटना पड़ेगा कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, लाइक दिस ऐसे बनेगा। सब कुछ क्या है, एक कंसेप्ट पे चलता है, एक प्रूफ पे चलता है, और ये इसका प्रूफ है। ओके, नेक्स्ट। अब हम कुछ कैटालिटिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम किसी कैटालिटिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या, अगर ये कौन सा है, ई है, ठीक है, अगर रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट, रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, इसको हम लिखते हैं ऐसा, रेड P4। देन इन केस ऑफ रेड P4, व्हेन ROH react with X is equals to Cl or Br, X is equals to either Cl or Br, sorry, this is iodine and Br, X is equals to either iodine or Br, then this will form Rx. When alcohol react with halogens like iodine and bromine in presence of red phosphorus, it will form alkyl halide। स्टेटमेंट याद रखिएगा, when alcohol reacts with halogens like
आयोडीन एंड ब्रोमीन, it will form alkyl halide in presence of red phosphorus. In presence of red phosphorus, red P4. Okay, so this is the preparation method from alcohol. अब हम आते हैं नए प्रिपरेशन मेथड पे, फ्रॉम एल्कीन्स. फ्रॉम एल्कीन्स. नाउ एल्कीन क्या है? C डबल बॉन्ड विथ C. दिस इज एल्कीन. Like this. When alkene react with X2, this is क्या? Halogen molecule. Free radical addition reaction takes place. Free radical addition reaction takes place. कैसे भाई? ऐसे. C double bond with C, this is the pi bond, plus X single bond with another X. Free ball, free radical gets generated and X dot plus X dot. Now this X combines to the free radical and form dihalides. C bond X, single bond C bond X. And always remember, when two adjacent carbon join with a single bond, two adjacent carbon join with a single bond have halogen atoms, then they are known as vicinal dihalide. Vicinal dihalide. जब दो एक के बाद एक आने वाले दो कार्बन, दो सटे हुए कार्बन एटम, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर हैलोजन मॉलिक्यूल को अपने पास रखते हैं, हैलोजन एटम को अपने पास रखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहेलाइड. अभी इसका क्या नाम है? इथेन 1,2 डाई. ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो हो, ब्रोमो हो, कुछ भी हो, ठीक है, डाई क्लोराइड है ये. ऐसे ये क्या है? विसिनल डाइहेलाइड, कॉमन नेम है इसका. ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विसिनल डाइहेलाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है. नेक्स्ट एल्कीन पे ही बात करेंगे. अभी क्या था हमारे पास? जो एल्कीन थी वो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या लगा हुआ था? C. एक एक C लगे थे दोनों तरफ. अब अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. ये एल्कीन क्या है? अनसिमेट्रिकल है. डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन का स्ट्रेंथ क्या है? अलग अलग है. ठीक है. अब देखिए 11th क्लास को याद कीजिए, क्या बताया गया 11th क्लास में? कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है, जहां पर ये क्या है? एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करना स्टार्ट करेगा. कैसे पुश करना स्टार्ट करेगा? ऐसे. CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे. ठीक है, इसको क्या करेगा? वो उधर पुश करेगा. तो ये क्या होगा? ये पाई बॉन्ड CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको क्या बोला गया? प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. अब देखिए यहां क्या आ गया? अगर इसका रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम
HCl के साथ कराते हैं तो क्या होगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, देन दिस विल फॉर्म CH3 बॉन्ड CH डेल्टा पॉजिटिव बॉन्ड CH2 डेल्टा नेगेटिव plus H bond Cl, this is delta positive, this is delta negative, then Cl combines to the CH and H combine to CH2 and this will give CH3 bond CH bond Cl bond CH3. ठीक है, यहां क्या लग गया, Cl लग गया, कैसे लग गया, ऐसे लग गया, प्लस आई इफेक्ट के कारण लग गया, क्यों लग गया, इलेक्ट्रॉन पुशिंग कैरेक्टर के कारण लग गया। तो इस चीज को हम याद रखेंगे और ये कब होगा, हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होगा, हमेशा ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब रहेगी तभी ये चीज पॉसिबल है। अब देखिए दो चीजें और हैं, एक तो ये रिएक्शन हो गई, इसी बेस पे एक और रिएक्शन है, देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका रिएक्शन करा देंगे HBr से, ठीक है। तो यहां दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्या, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जो कि HBr से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, then Br goes to that atom which contain less number of hydrogen. Br goes to that atom which contain less number of hydrogen in presence of H and the product will be CH3 bond CH bond Br bond CH3. Now the next one is anti-mark. एंटी मार्क रूल, ये मार्क रूल था, ये एंटी मार्क रूल है। क्या बोला गया इसमें, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide like H2O2, in presence of peroxide like H2O2, then Br will go to the carbon which have more number of hydrogen, more number of hydrogen. So the product will be CH3 bond CH2 bond CH2 Br. So this is the difference between the reactivity of alkenes, और कौन सा alkene, unsymmetrical alkene in presence of light and peroxide when they react with HBr. Okay. Now, next one is Flynn-Kistin reaction. Flynn-Kistin reaction, एकदम नाम याद रखेंगे, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। When Rx react with NaI, when Rx react with NaI, it gives Ri plus NaX. It gives Ri plus NaX. ठीक है, अब देखो सवाल ये है कि X क्या होगा जी, तो X हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, जब भी Rx एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड, एंड द हैलोजन विल बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसी के जैसा एक और मिलता जुलता रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बोलती है, व्हेन Rx react with AgF, then it will give Rf plus AgX। नेम रिएक्शन को आप एकदम याद रखेंगे, हमेशा दिमाग में होना चाहिए आपके, और बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के वाले क्वेश्चन में 2 नेम रिएक्शन 110% आते ही आते हैं, तो आप उसको याद रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्लिनकिस्टिंग रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके गाइज, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे फिर हम आगे के टॉपिक्स पे कवर करेंगे। सो कीप स्टडी एंड हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू।